ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کر آپ کو بتائیں کہ حسن نواز کا شاندار میچ ڈیبیو، حسین طلعت کے ساتھ سنچری۔ پاکستان نے 49ویں اوور میں ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میچ میں شکست دی تھی۔ کپتان محمد رضا نے 53، بابر اعظم نے 47، حسین طلعت نے 41 اور سلمان علی آغا نے 23 رنز بنائے۔ حسن نواز 14 گیند پر 63 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 280 رن سکور کیے۔ ایون لیوس نے 60، کپتان شیہوپ نے 55 اور روسٹن چیس نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین شاہ آفریدی نے 51 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ نسیم شاہ نے 3، سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر اقوام متحدہ کو تشویش، رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیلی منصوبہ خطرناک قرار دے دیا، کہا یہ منصوبہ بڑی تباہی کا باعث بنے گا، فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ فلسطین نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل بھوک، ظلم اور نسل کشی کے سنگین جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا اعلان، پاکستان کا شدید رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کا غزہ پر غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ قابل مذمت قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی نسل کش فوجی مہم کا فوری خاتمہ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے بھیانک جرائم پر جواب دہ بنائے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کر دی۔ پانچوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کروا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان نے یقین دلایا اب جنگ نہیں ہوگی، اب دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں ہونے والی جنگ بندی کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ پاکستان اور بھارت کا تنازع بڑا تھا، آسمان پر طیارے گرائے جا رہے تھے۔ پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو، میں جنگیں نہیں چاہتا، تجارت چاہتا ہوں۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے جنگ میں بہت سال ضائع کیے۔ آرمینیا کے صدر نے کہا صدر ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے امن معاہدہ ممکن ہوا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور نے بھی ٹرمپ کو امن نوبیل انعام دینے کی تجویز دے دی۔ India, Pakistan, I think it was trade more than any other reason. That's how I got involved. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one. Getting that one settled, I think you'd agree. That was a big one. And they were going at it. They were shooting airplanes out of the sky. 5 or 6 planes got shot down in their last little skirmish, and then it was going to escalate from there, and that could have gotten to be very, very bad. Now, I want to save a lot of lives. I love saving lives. That's what it's about. And, when you save lives, you really end up having a peaceful world. Usually that ends up pretty well. I want to thank everybody, but in particular these 2 great leaders for having the courage to do what they did today, and they're going to go down in the history books, and it's a great honor to be involved. پاکستان کی صدر ٹرمپ سے قربت پر بھارت کے پسینے چھوٹ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا اسلام آباد کے حق میں امریکی جھکاؤ پر نئی دلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکہ سے نئے تعلقات کے بعد پاکستانی قیادت کا اعتماد بڑھ گیا۔ پاکستان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تمام پتے درست انداز میں کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی مسئلے کے بغیر تجارتی معاہدہ طے پایا۔ اس کے برعکس بھارت کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ٹرمپ دور میں امریکی تجارتی معاہدے کی تکمیل تک پہنچنے والے چند ملکوں میں شامل ہے۔ ایک طرف پاکستان کے مزے ہیں تو دوسری طرف بھارت کو مایوسی کا سامنا ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں تیل اور معدنیات کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی معاہدہ طے پایا۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा जुमा रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन से जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि रूसी सदर पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का रूसी सदर से मुलाकात का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने पुतिन को अमन कायम करने या सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करने की धमकी दे रखी है। पाक फौज का यूरोप के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। मरने वाले खारजी मुल्क दुश्मनों से भारी हथियार, गोलियां और धमाका खैज मवाद मिला। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के खदशे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, उनका खात्मा यकीनी बनाएंगे। खबर दें आपको, वाशिंगटन में 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। तैयारियां जारी हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहां ज़ेब अली हमारे साथ मौजूद है। जहां से बताएगा। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम होने जा रहा है 17 अगस्त को। और इस खालिस्तान रेफरेंडम के रोज जो है सदर ट्रंप के लिए सिखों ने जो है एक दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया है, लॉन्ग लिव प्रेसिडेंट के नाम से। आज इस हवाले से वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में SFJ के जो रहनुमा हैं गुरबचन सिंह पन्नू, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत ने अमेरिका समेत दुनिया भर में अपने सफारत खानों को दहशतगर्दी और जासूसी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। अमेरिका में भारतीय सफारत खाना कत्ल की साजिशों की कमांड सेंटर्स में जो है तब्दील हो चुका है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का जवाब टैरिफ बम से दिया है और उन पर 50% टैरिफ आयद किया है। इस पर हम सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको अप्रिशिएट करने के लिए 17 अगस्त को वाशिंगटन में एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसके बाद खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग का आगाज होगा। इस मौके पर खालिस्तान कौंसिल के सदर डॉक्टर बख्शीर सिंह सिंधु ने भी कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम का सवाल 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में गूंजेगा और हर वोट भारत को पंजाब पर कब्जे के खिलाफ एक जरूरत होगी। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये वाशिंगटन DC के अंदर 17 अगस्त को, और इस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहुत शुक्रिया। जहां से FBR ने नए माली साल के लिए इनकम टैक्स में तरामीम जारी कर दी। बैंक से रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स कटौती में इजाफा कर दिया गया। FBR जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स की यौमिया 50,000 रुपए से जायद निकलवाने पर 0.8% टैक्स काटा जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुंतकली पर एडवांस टैक्स की शरह तब्दील कर दी गई। प्रॉपर्टी खरीदार के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी करके फरोख्त या मुंतकिल करने वाले पर टैक्स में 1.5% इजाफा कर दिया गया। 15 साल से मालिक के ज़ेरे इस्तेमाल जायदाद बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। जिना अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में जबरदस्ती दाखिल होने और हमला करने पर डॉक्टर शब्बीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके महकमा सेहत ने मुअत्तल कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शब्बीर ने अस्पताल का 1.21 करोड़ रुपए मालियत का सामान खुद बुर्द किया, जिस पर पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल के तहत मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज कराची एक्सपो सेंटर में शाम 7:30 बजे होगा। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अम्बरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, इमरान आमी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश, फरीहा नकवी, नईम समीर, अब्दुल रहमान मोमिन और जॉन हसन अली अपना कलाम पेश करेंगे। मुशायरे में दाखिला मुफ्त है। सीनियर सहाफ़ी आसिमा शिराजी, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सदीकी, अयूब खोसो, गुलकार शहजाद रॉय ने शहरियों को मुशायरे में शिरकत की दावत दी। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे।
आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं, मैं भी वहाँ मौजूद होऊंगा। एक अहम मुशायरा हो रहा है मार्का हक यौम आज़ादी पे जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक्सपो सेंटर कराची में बरोज हफ्ता 9 अगस्त शाम 7 बजे होगा। इस दफा हम बहुत ही जज्बे के साथ 14 अगस्त मना रहे हैं। सो 9 अगस्त को एक्सपो सेंटर के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा एक मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। एक्सपो सेंटर कराची 9 अगस्त सैटरडे को आप एंजॉय कर सकते हैं कमाल किस्म की शायरी। जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशियों में मैं भी उतना ही शामिल हूं जितना आप हैं। 9 अगस्त शाम 7 बजे कराची एक्सपो सेंटर पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ आएं और इसमें आके अपना हिस्सा जरूर डालिए। जी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। शोरा इकराम मैं आपको बता देता हूं, उसके अंदर जावेद सबा होंगे, फाजिल जमीली होंगे, अली जरियून होंगे, फरिया नकवी साहिबा होंगी और भी पाकिस्तान के बड़े शोरा इकराम हिस्सा लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से सिंध हुकूमत ने बेशुमार प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। इन प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम जो कि 9 अगस्त को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शायर हजरात वो तशरीफ ला रहे हैं और अपनी बेहतरीन शायरी से इस मुल्क को खराज अकीदत पेश करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ ले आइए। एंट्री बिल्कुल फ्री है। एक्सपो सेंटर कराची में आप आएंगे तो इस तकरीब को 4 चांद लगेगी। कराची में शाहराह भुट्टो पर बॉर्न टू रन पाकिस्तान की जानिब से रेस का इनेकाद किया गया। 1 मील मसाफत की रेस 2 मरहलों पर मुश्तमिल थी। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में शाहराह भुट्टो पर रेस का इनेकाद किया गया, जिसको आज़ादी यूनिटी माइल का नाम दिया गया। 1 मील की मुसाफत की ये रेस थी, जिसमें 1000 से ज़ायद खवातीन, मर्द और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट पे आके बहुत अच्छा लगा और ये आज़ादी रन है, सबके लिए मौका है ताकि पता चले कि सब हेल्दी हैं। और इस इवेंट पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर में भी पार्टिसिपेशन की है और वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्दी एक्टिविटी है और यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आए हैं, बहुत सारी यूथ है और हमें इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा एक सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है और मेरे ख्याल से कि इस तरह के इवेंट्स बहुत सारे और भी होने चाहिए। 2 मराहिल पर मुश्तमिल ये रेस थी, जिसमें एक मरहले में खवातीन और दूसरे मरहले में मर्द जो थे उन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया और इसमें जीतने वाले को 40,000 रुपए का जो है इनाम दिया गया। फर्स्ट प्राइज जो है वो 40,000 और उसके अलावा सेकंड और थर्ड प्राइज भी जो है वो कैश मनी यहाँ पर दी गई। तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया। जिन खवातीन और मर्दों ने हिस्सा लिया उन्होंने इस रेस को खूब सराहा। उनका कहना था कि ये जो एक्टिविटी है एक हेल्दी एक्टिविटी है। इस तरह की एक्टिविटी नौजवानों में होनी चाहिए, जिसके बायस जो है वो नौजवान जो है वो एक सेहतमंदाना सरगर्मी की तरफ माइल होते हैं। पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक जो थे वो इस रेस के जो है मेहमान खुसूसी थे। लाड़काना में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर भर में तकरीबात के इनेकाद और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बाबू इकबाल की इस रिपोर्ट में। लाड़काना में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश से जारी हैं। हर तरफ खुशियों का समा है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन बाजारों में लगे स्टॉलों से कौमी परचम, बैजेस, टोपियां और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इस मर्तबा जो खरीदारी है, लोग बच्चे लेके आ रहे हैं, बूढ़े, औरतें जबरदस्त जोश से। शहर भर में रैलियां निकालने और परचम कुशाई की तकरीबात का सिलसिला जारी है। जामिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में शजरकारी और फ्री मेडिकल कैंप का आगाज किया गया। वो टोपी लेके दिया, झंडा वगैरह लेके दिया और इनको बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने ये वतन कितनी मुश्किलात से, कितनी कुर्बानियों से हासिल किया था। जिले भर की तमाम तहसीलों में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को कौमी परचमों से सजाया गया, जबकि हर जगह बैनर लगाकर मुल्क से मोहब्बत का वालियाना इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज लाड़काना। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची की साहिली पट्टी पर भी हल्की बारिश मुतवक्की है। कोयटा समेत दीगर अजला में मौसम गर्म, हब्स बरकरार रहेगा।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تعلیم کے شعبے میں ریٹنگ میں بہتری خوش آئند ہے. وہ گورنر ہاؤس لاہور میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے ایکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کا کہنا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی کردار سازی بہت ضروری ہے، جس کے لیے پہلے اساتذہ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. معاشرے کے لیے اچھے انسان نہیں پیدا کر رہے. اگر ہم نے بچوں کا رویہ نہ بدلا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تقریب سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر ملک بھر سے مختلف سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کے 28 ریکٹرز، وائس چانسلرز اور پرو وائس چانسلرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. اور اب ٹیک نیوز. چین میں جینیاتی سائنسدانوں نے کلوننگ سے بکری کی تخلیق کر ڈالی. بکری کا یہ بچہ اسی تکنیک سے پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے پہلے ڈولی نامی بھیڑ پیدا کی گئی تھی. خبریں آپ جاری نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی نیوز.